हम इस वक्त हैं जोशीमठ के श्री हेमकुंड साहिब जी गुरुद्वारा, मैनेजमेंट ट्रस्ट गुरुद्वारा है उसके सामने। इस वक्त हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों में, हफ्तों में हम लगातार सुनते रहे हैं कि जो जोशीमठ में मकान है उनमें क्रैक्स आए हैं। लेकिन 2 तारीख की रात को लोग बता रहे हैं, 2 जनवरी की रात को यहाँ पर उन्हें अपने घरों में जैसा लगा कि घर सिंक कर रहे हैं और उनके जो घर हैं उनमें बड़े बड़े क्रैक्स उन्हें दिखे। बहुत सारे लोग हैं, वो अलग अलग जगहों पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। कुछ परिवारों को यहाँ पर इस गुरुद्वारे में लाया गया है। यहाँ पर जो परिवार आ रहे हैं उनको खाने पीने की या जो भी सुविधा मुहैया करवाई जा रही है उसके बारे में यहाँ पर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, हम बात करेंगे सेवा सिंह जी से। सेवा सिंह जी जनरल मैनेजर हैं यहाँ पर इस गुरुद्वारे के। सेवा सिंह जी, बहुत शुक्रिया बीबीसी से बात करने के लिए। सबसे पहले बताएं कितने परिवार हैं यहाँ पे और आप उनकी कैसे मदद कर रहे हैं? ਲਗਭਗ 12 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 200-250 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਸਵੇਰ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SDRF ਹੈ, NDRF ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। थोड़ा सा दिखा पाएंगे सेवा सिंह जी, यहाँ पर ये किचन है आपका, है ना? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ, ਚੌਲ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। थोड़ा सा इस गुरुद्वारे के बारे में बताएंगे। आप बता रहे थे कि 1960 के दशक में, 1960s में ये गुरुद्वारा बना। लोग आते थे हेमकुंड साहिब जी जाने के लिए और यहाँ पर रुकते थे। थोड़ा सा इस बारे में बताएं। ਐਕਚੁਅਲੀ 1934 ਵਿੱਚ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ 1937 ਚ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਾਊਂਡਰ ਟਰਸਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਜੋਸ਼ੀਮਠ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ, ਗੋਬਿੰਦਧਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਗਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਦੁਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੱਕ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹ 1960-65 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ ਰਿਹਾ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਆਪਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ 2019 ਚ ਰੈਣੀ ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। थोड़ा सा बता पाएं, ये सामने घर है जहाँ पर जो रूम्स हैं वहाँ पर लोगों को रखा गया है। जी, जी। तो चैलेंजिंग होगा, आप अपना घर छोड़कर आते हैं और यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। ये थोड़ा सा बता पाएं क्या चैलेंजेस होते हैं? ਦੇਖੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 5000 ਜਾਂ 6000 ਜਾਂ 7000 ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 500 ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, 1000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है। तो जो 10 फैमिलीज हैं शायद यहाँ पर रुकी हुई हैं, तो ये नीचे भी हैं और ऊपर भी रह रही हैं। हाँ, ये इस कम्प्लेक्स में हमारे पास लगभग 20 कमरे हैं। तो 12-13 ਕਮਰੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਇੱਥੇ, ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕਣਗੇ। तो ये घर हैं। हम कुछ परिवार हैं उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। ये रूम्स हैं जहाँ पर मतलब सोच के रखिए अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप किस तरह से अपने घर में रह रहे हों और आपको एक दिन अचानक बोला जाए या फिर जिस स्थिति आ जाए कि आपको सब कुछ पैक करके शिफ्ट करना पड़े किसी दूसरी जगह, एक कमरे के मकान में या रूम में, इस वक्त ये मदद भी मिल पाए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे साथ एक फैमिली है। क्या नाम है आपका और क्या हुआ आपके साथ? अब 2 तारीख की आप बता रहे थे रात में, क्या हुआ, क्या नाम है आपका?
मेरी नाम कल्पी देवी है। और 2 तारीख क्या हुआ था, 2-3 बजे रात, पता कितने बजे रात था। तो क्या हुआ, फिर तो दर 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 की आवाज़ आई। हमने बोला पत्नी क्या हो रहा था। तो हमारे कमरे जो है कि 3-4 कम से कम 8-10 दिन पहले से फटने लग गया था। हमने सोचा कि हमारी दीवार नहीं गई है, दीवार से हो गया होगा। दीवार भी बनाई हमने, तब से जो है 2-2 अंगल फटने लग गए। तो हमने रेता सीमेंट से कि भाई फर्श को भी बंद किया। तब कुछ दिन तो 2 बजे रात को क्या हुआ, तो जैसे चारपाई हिलती है ऐसे ही हिला, ऐसे ही हिला तो धड़म आवाज़ आई। हम सब नींद खुल गई सब। छोटा बच्चा था, मेरी नातिनी थे 2, अपने गोद में रखा। हमने बोले क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो थोड़ा थोड़ा सा जो है कि पत्थर गिरने लग गया नीचे। इनके ये तो ऐसा है कि हमारे लिए तो ये भगवान निकला, जो हमको राशन दे रहे हैं, चाय पानी दे रहे हैं, कमरे की व्यवस्था हो रही, सब खाना पीना गुरुद्वारे वाले का है। देख रहे हैं लोग, ये दुख सुख भी देख रहे हैं। जैसा हमने अपने बच्चे के भी पालन परवश नहीं किया होगा, सेवा कर रहे हैं वो, इतना सेवा कर रहे हैं वो। तो हमको दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, क्योंकि ये बीमार आदमी है करके। और सरकार से क्या चाहते हैं, जो हमारे मकान बन रखे है, ये हमको मकान बना के दीजिए, ये हमारे मकान का पेमेंट कीजिए, तब हम कहीं दूसरी जगह देखेंगे। और क्या करना साहब। तो गजेंद्र सिंह जी थोड़ा बताएंगे कि किस हालात में रह रहे हैं यहाँ से। आपका मैं देख रहा हूँ बेटा पढ़ाई कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई है, थोड़ा सा बताएं। सर मैं माउंट व्यू के पीछे का पीड़ित हूँ। और जहाँ तक वो जो होटल था जिसको अभी जो है सरकार तोड़ रही, और जहाँ तक अभी यहाँ पर तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। घर से मतलब घर जैसा भी जो है व्यवस्था है, और घर जैसा खाना पीना, मतलब यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कतें तो है नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो है कि सरकार ने भी बहुत अच्छी जो है व्यवस्था कर रखी है। लेकिन गुरुद्वारा तो गुरुद्वारा होता है यहाँ पर। अपना घर तो अपना घर यहाँ पर तो अगर जिस दिन ऐसा लगता है कि भाई अब तो यात्री आने वाले हैं, तो एक दिन तो जाना है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है इन लोगों ने, स्टाफ ने। ये ऐसे बहुत मुश्किल काम से हमने जो है कि एक सपना सजोया था कि जोशीमठ में मेरा घर है। आज घर कोई नहीं है आज।